میرا ہمیشہ سے یہ درست موقف رہا ہے، اور جس کے میں بے شمار مثالیں بھی دے چکا ہوا ہوں، کہ قادیانی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان کی پہلی محبت پاکستان نہیں ہے۔ وہ اپنی جماعت کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنی جماعت کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، ان کا مفاد صرف اور صرف اپنی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک 1947 سے لے کے آج تک ہیں، اسٹیبلشمنٹ، ادارے سب کے سب پاکستان کے قادیانیوں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی وہاں ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، ملٹری ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، یعنی ہر قسم کے محکمے۔ تو ظاہر ہے کہ یہی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکا، کہ قادیانی جو رولنگ ٹولہ ہے وہ ہر دور میں پاکستان کی بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمارے ملک کے پلیت لبرل حرام زادے گشتی کے بچے قادیانیوں کے نفتے کی پیداوار، گانڈو حرام زادے، یہ کیا مزمل شاہ ہے یا دوسرے تیسرے، یار میں حیران ہوں یہ کتنے بے غیرت آدمی ہیں کہ ان کے بیانیے کو میں نے کلیئرلی جھوٹا ثابت کیا، غلط ثابت کیا، قادیانی بیانیہ ثابت کیا، لیکن ان مادر چودوں میں اتنی جرت نہیں کہ میرے ایک بھی بات کو آ کر تو یہ جو ہے چیلنج کر سکے۔ اور افسوس پھر بھی لوگ ان کو فالو کریں تو ظاہری بات ہے کہ یہ قصدن جو ہے یہ غلط شیطان لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو، غدار لوگوں کو جو ہے یہ فالو کر رہے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہی بیانیہ سنتے آئے ہیں قادیانی لبرلز کا، کہ جناب جو بریلینٹ مائنڈ آف پاکستان تھے وہ تو صرف قادیانی تھے، اور انہوں نے پاکستان کی بے شمار خدمات کی، یہ کیا وہ کیا، اور وہ آج بھی کمیٹڈ قادیانی ہے، گو کہ ہم نے ان کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا۔ یہ تہاڈی ماں دے اودے چ اے اوے سنو بہن چودو، اوے کنجری دے پترو، اے زندہ مثالاں تہاڈے سامنے نے کہ قادیانیوں کا انٹرسٹ جو ہے، قادیانیوں کا پاکستان کی ویلفیئر ہرگز نہیں ہے۔ ماں چودو، کنجری دے پترو، تم بڑا کہتے ہو، آ کے جسٹیفائی کرتے ہو کہ جی وہ کیا نام تھا اس کا، ڈاکٹر سلام، اس نے پھر کہہ دیا کہ ہمیں اس ملک میں جو ہے رہنے کے، کیونکہ کافر قرار دے دیا لہذا میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اگر اس کی پہلی محبت پاکستان ہوتی تو وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو، پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے اس فیصلے کو ایکسپٹ کرتا اور ملک میں رہتا۔ وہ پہنچودہ ہوتے نہ سکیا، وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک میں رہنے نہیں چاہتا جہاں پر قادیانیوں ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ تو بات کیا ہے کہ اس شخص نے ثابت کیا کہ اس کی پہلی محبت قادیانیوں کا مذہب ہے، نہ کہ پاکستان۔ تو اس لیے اگر جنرل ضیاء بھی ہوگا، اگر عمران خان بھی ہوگا، اگر نواز شریف بھی ہوگا، اور جو بھی کوئی ہوگا، یا آج کا جو مادر چود کیا ہے، کاکڑ ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ سب کے سب کیونکہ مرزئی ہیں، اور اس لیے یہ پاکستان کے اوپر جب ان کا ہولڈ ہوگا تو ان کی پہلی محبت، ان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ قادیانی مفاد کیا۔ سنو ماں چودو حرام زادو، پاکستان کا تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہو ہم بڑے مظلوم ہیں۔ اب ساری دنیا کے لیبرل کٹھے ہو کے کسی اپنی کا اس کا زور لگا کے مجھے بتائیں کہ جناب یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ پاکستان چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ ہم کو انہوں نے یعنی مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے، اور پھر پہن چودو جنرل ضیاء دے دور دے 1979 کے اندر وہ پاکستان کیوں آیا تھا؟ وائی ڈونٹ یو یوز یور فکنگ مائنڈ؟ اس لیے کہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ مرزا
नासर की इमा के ऊपर पावर में आया है, कादियानी एस्टेब्लिशमेंट की बिना के ऊपर उनके इशारे से आया है, और ये भी एक जमांदरू मादरचोद कादियानी है, और इसकी बीवी कादियानी, इसका दादा कादियानी, इसका बाप कादियानी, इसके दामाद कादियानी, इसकी बहू कादियानी। मां चौदह ये फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, फिर आप कहते हैं कि वो एंटी कादियानी था। ताड़ी मानसूर यार कंजरी दे पुत्र लिबरल्स। तो भाई इनके अंदर कोई भी गैरत नहीं है। मैं गाली इनको इसलिए देता हूं कि इनकी इज्जत तो बचपन में क्या अभी भी वो बदफेली करवा करवा के तो इज्जत गई चली हुई है, शर्म गई चली हुई है। शायद इनको अपने माँ बाप की इज्जत का थोड़ा सा हो तो मेरा जवाब दें। माँ चोद हरामजादे, अब पूछो तेरी मैं पानू। और पुख्ता दलील है कि जब वो 1979 में पाकिस्तान आया था डॉक्टर सलाम, तो उसको मालूम हो गया था कि अब ये हमारी रियासत बन चुकी हुई है, क्योंकि जनरल जिया इसीलिए तो वहां आया था। और टेक्निकली तौर पर जनरल जियाउल हक ने अंदर खानी कादियानियों का मुसलमान स्टेटस बहाल कर दिया हुआ था। दिस वॉज द मेन रीजन ही केम बैक टू पाकिस्तान टू गेट हिज मेडल। तुम उसी जनरल जिया को कह रहे हो कि वो एंटी कादियानी था? या तो ये बताए जमाते कादियानी के हाँ उस वक्त जो है वो इसलिए आया था कि भाई उसने अपनी कसम पूरी रखी कि जनरल जियाउल हक इतनी अखलाकी जरूरत तो पैदा करें ने, उसने जो कवानीन बना दिए थे वो उसके हिसाब से हमें मुसलमान करार दे दिया जा चुका था, इसलिए वो वापस आया था। माँ चौदो तुम एक पासे तो ठहरो, माँ चौदो हराम सारो पुत्रो लिबरल्स। अगर कादियानी जमात लॉ अबाइडिंग होती और अगर इनको पाकिस्तान के कानून का या अपने ही इल्फाज की मान होता तो ये क्यों गया था मिर्जा वहां पर? ये साबित करने के लिए कि हम मुसलमान हैं और बाकी दूसरे काफर हैं। जब वहां जलील हुआ क्योंकि उसने कहा कि हम उनको मुसलमान मानते हैं जो मिर्जा को नबी मानते हैं, जो तो जाहिरी बात है या तो फिर ये क्या नाम है मुअज्जम शाह और ये इस किस्म के मादरचोद बोंडी बच्चे आए और बोले कि हम भी मिर्जा, इतनी अखलाकी जरूरत तो इन मादरचोदों को होनी चाहिए ना, जो अकीदा रखते हैं जुबान पर भी खुलकर लाएं। मैं कहता हूं कि मैं मिर्जे को हरगिज़ नबी नहीं मानता, मैं उसको कज़ाब और जानवी मानता हूं। तुम क्या मानते हो मादरचोदो? तो जो तुम उनको उनकी सफाइयां पेश करते हो, ताड़ी मौजा कश्ती दे पुत्र हरामी कांडू। तो खैर बहरहाल मैं कमिंग टू द पॉइंट, ये कानूनी तौर पर ये जो है वहां पर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किए गए थे, कोई जबरी फैसला नहीं था, डिबेट के बाद हुआ था और फिर पहले इन्होंने तकफीर की थी। मां चौदह तुम आगे कहते हो एक्स कम्युनिकेट कर दिया, ताड़ी मादक सूरा दे कुत्ती दे पुत्र। तो खैर फैक्ट्स दूसरे हैं, ये झूठ बोलते हैं मां चौद और इसीलिए मेरा फेस नहीं कर सकते। तो जनाब अली जुल्फकार अली भट्टो को देखो, उसने जेल के अंदर 2-3 किताबें लिखी और उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, उसको फांसी लग रही थी, लेकिन उसने एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, उसने एक राज नहीं खोला पाकिस्तान का, लेकिन वो फांसी लग गया। और इनको एक डिबेट के बाद नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया और जनाब वो कहता है मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि तुमने हमें ये किया है। तो बात क्या है, साबित होता है कि हर कादियानी की पहली मोहब्बत कादियान होता है और जब तक इनका रूल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान जलीलो ख्वार ही होता रहेगा। माचोदो गुर्बत बढ़ती जाएगी। मौलवी माचोद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कादियानी पैसे की तरफ देखते हैं, उनको ना दीन की परवाह है ना मुल्क की परवाह है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये समझने से ताल्लुक रखती है। जो मादरचौद मौलवी आज भी जियाउल हक को मुसलमान बोलते हैं, यह तस्दीक शुदा बात है कि जनरल जियाउल हक ने 79 में डॉक्टर सलाम को यह कहकर मेडल दिया था कि दुनिया इस्लाम का पहला मुसलमान है जिसको यह नोबेल प्राइज मिला है। यह कहना कतई कुफर है। अगर जियाउल हक पैदाइशी कादियानी ना भी होता तो उसका यह बयान कुफर है, कतई कुफर है, मगर आज तक किसी मौलवी ने उसके ऊपर फतवा नहीं दिया और यह तक नहीं कहा कि वो इसके ऊपर, और यह भी साबित नहीं कि इस कुफर से जनरल जियाउल हक ने इलानिया ये कहा हो कि वो मिर्जा कादियानी को कज़ाब मानता है और कादियानियों को काफिर मानता है, लेकिन इसके बावजूद उसको मुसलमान कहा जाता है। शेम।
फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974, so डायरी एंट्री एक सलाम साहब की कि डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created from Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में। साइंस एडवाइजर साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के। ये आपने सारे फैक्ट सुन लिए। तो बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल, ये मादरचोद, ये हरामजादे, ये जो हैं वो किसी चलते फिरते उबाश लोगों की पैदावार, क्या नाम है, मुजम्मल शाह हो गया या वसतुल्ला ये वगैरह, ये इनकी सारी बयानियां जो है वो कादियानी फेवर में जाती है। और इसके लिए वो तारीख को मुकम्मल मस्क करते हैं। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे नाम ही बड़े हैं, काम इनके कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसके पीछे कादियानी दस्ते शफकत होगा, वो अगर वो सहाफत में है तो वो दुनिया का सबसे या पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी बन जाएगा। अगर सियासत में है तो उसको जनाब रियासत मदीना बनाने वाला या रोड्स बिल्ड करने वाला, ये वो बनाकर वो पेश करते रहते हैं। फौज हो, ये कोई सारी चीज़ें जो जिसका ताल्लुक कादियानियत से है, वो समझ लें उसको जो है पाकिस्तान का हीरो और बहुत अहम शख्सियत और हर किस्म के जो भी मेडल्स होते हैं इन लोगों को मिलते हैं, तगमा पाकिस्तान, ये वो। तो मसला सिर्फ यही है कि अगर कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान से कमिटेड होते तो वो यकीनन और यकीनन पाकिस्तान के लिए कुछ करते। इन्होंने क्या किया, इनकी जमात, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया एक डिबेट के बाद। और जाहिर है जब डिबेट इस मसले के ऊपर होनी थी कि कादियानी काफिर हैं कि नहीं, तो जो वो एक्सेप्ट किया था इनके लीडर्स ने, और इसीलिए तो वो आए थे। तो जब वो डिबेट में हार गए, बल्कि हारना क्या, उन्होंने पहले ही मुसलमानों को जो है वो तकफीर कर दी थी, जिसका मैं बता भी चुका हूँ। तो ये जितने भी हरामजादे हैं, क्या नाम है, मुअज़्ज़म वगैरह, ये वो तारीख को मस करते हैं। और मेरी एक बात का भी जवाब नहीं दे सकते, मैं इनको पाश पाश करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। पहले भी किया है, अब भी करूंगा। यानी ये तो फितरती सी बात है। अगर एक आदमी ने एक दावा किया है, आगा वसीम कह रहा है कि जनाब ये जनरल ज़ियाउल हक कादियानी था, और जो लोग मुजम्मल शाह और ये लिबरल वगैरह उसको एंटी कादियानी कहते हैं, अगर यानी असूल की बात है, आए उसको कादियानी गैर कादियानी साबित करें। यानी ऐसे हराम ज़ादे हैं ये। खैर ये फैक्ट्स आपके सामने हैं। क्या मतलब ये जो डॉक्टर सलाम जो था, वो ये कह के पाकिस्तान छोड़ के गया कि मैं एक ऐसे मुल्क में नहीं रह सकता जहां पर हमें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है। ओके, और वो वापस फिर आया। इसलिए वापस आया, समझने की बात यह है कि वो वापस इसलिए आया जब जनरल ज़ियाउल हक ने लाहौर हाई कोर्ट में कादियानियों का स्टेटस मुस्लिम बहाल करवा दिया, उनको इस्लामी शायर वगैरह, तो टेक्निकली उनको जो है वो जो नॉन मुस्लिम उनके ऊपर था वो ख़त्म करके, इसी वजह से 79 में जो है ये आया था और अपना मेडल वसूल किया था। तो बाकी ये चीज़ें हैं, ये सब लोग जाने। और इसके बाद बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये जब आप औरिया मकबूल जान की बात सुनते हैं, जब इन लिबरल्स की बात सुनते हैं, तो इसको कहेंगे यार, इनसे पूछें। आप लोग भी तो बिल्कुल खामोश तमाशे हैं ना, पूछें, इनको सवाल करें
کہ جناب یہ چیزیں ہیں، آپ کے اوپر یہ باتیں ہیں، آپ جھوٹ بتاتے ہو، یا اگر آپ کے پاس سچ ہے تو آغا وسیم کی باتوں کا جواب دو۔ اگر عوام صرف ادھر سے سن کے نکال دیں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں تو اپنے ایفرٹس کرتا رہوں گا، لیکن بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، دوسرے لوگوں کا بھی فرض ہے کہ جو لوگ ڈس انفارمیشن پاکستان کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ ان کو جھنجھوڑیں۔ یہ تو خاموش تماشائی ہیں۔